لکھ دیتے ہیں شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب کے الیکشن میں اسد الدین اویسی صاحب کو یہ حکم دیا ہوگا تم جاؤ گجرات کی سرزمین پر جاؤ، یہ میرا حکم ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، تاکہ کوئی انسان اپنی مرضی سے گھر کے باہر نہیں نکلتا ہے اور کوئی انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے۔ سب کچھ اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہم تو محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، یہی سوچ کر ہم آئے ہیں۔ ہم آتے سو آتے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ماتم مچا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بابا ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ یہ چار مینار تمہارا ہے، یہ قلعہ گولکنڈہ تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے، ارے سب کچھ تمہارا ہے۔ دائس پہ بیٹھے ہوئے اورنگ آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ ایم پی جناب امتیاز جلیل صاحب اور گجرات مجلس اتحاد المسلمین کے صدر صابر بھائی کابلی والا اور یہاں کے جو جمال پور کے 4 امیدوار ہیں جناب رفیق شیخ صاحب، مشتاق خادی والا صاحب، مینا بہن صاحبہ، افسانہ چشتی صاحبہ، یہ چاروں کے چاروں آپ کے نہ صرف امیدوار ہیں بلکہ الیکشن لڑ رہے ہیں کارپوریٹر کا، جو منسپالٹی کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ چن کے بھیجائیں گے۔ اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام لیڈرز اور بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ ایک ایسے چوراہا پہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ جمال پور کی ناک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب 21 تاریخ کو پولنگ کے بعد 23 کو رزلٹ نکلے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اسی چورستے سے ہرا جھنڈا لے کر آپ نکلیں گے اور یوم فتح کا دشمنوں کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اکثر جب بھی انتخابی جلسے ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولنگ ڈیٹ کب ہے اور ہمارا نشان کیا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ تمام چیز بتانا اسی لیے ضروری میں محسوس کر رہا ہوں کہ 21 تاریخ کو صبح آپ اول وقت اپنے گھر سے نکلنا ہے 7 بجے اور جا کر پولنگ بوتھ کے اوپر، خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز سننے میں آ رہی ہے، ہمارا نشان پتنگ ہے، وہی بلندی کا نشان ہے کہ پوچھئے مت آپ، کیونکہ آج سے پہلے آپ کو گمراہ کیا گیا تھا، بہت سے چیزاں بتائے گئے تھے، مگر ہم بھی جانتے ہیں ہمارا مقابلہ اگر پورے ہندوستان کے اندر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ فرقہ پرست طاقتوں سے کر رہے ہیں، بی جے پی، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، ایسے تمام فرقہ پرستوں سے مقابلہ کرنے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، صرف اور صرف کانگریس بھاجپا کا نام لے کے آج تک آپ کے ووٹ لیتے رہی ہے، مگر آپ کے بارے میں ہرگز نہیں سوچی ہے، چونکہ آپ جان چکے ہیں آج لوگوں کی مجبوری تھی، وہ مجبوری یہ تھی کہ بھائی آخر ہم اگر ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہاں ہم بھی جانتے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو جس مذہب میں پیدا کیا ہے، میرا عقیدہ اور ایمان یہ بولتا ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام چیز لکھ دیتے ہیں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب کے الیکشن میں اسد الدین اویسی صاحب کو یہ حکم دیا ہوگا تم جاؤ گجرات کی سرزمین پر جاؤ، یہ میرا حکم ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں،
घर के बाहर नहीं निकलता है और कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। सब कुछ अगर हमारा अकीदा और ईमान है कि जो करता है अल्लाह करता है, हम तो मेहनत करते हैं, जुस्तजू करते हैं, यही सोचकर हम आए हैं। हम आते सो आते ऐसा लग रहा है कि लोग मातम मचा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाबा अभी तो शुरुआत हुई है। ये जो यहाँ के जो एमएलए है, साबिर भाई ने बड़ा अच्छा कहा है कि यहाँ के एमएलए को कोई देखे क्या नहीं देखे। आपकी वोटों की भीख से मैं तो कहूंगा 100% आपकी भीख थी। आपने 4 मर्तबा कारपोरेटर बनाकर भिजाया, मगर चारों मर्तबा अभी क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। हम इसको अपना समझे थे, मगर ये तो नाकारा निकला, ये खोटा सिक्का निकला। तो इसको क्या आपने इनको कारपोरेटर बनाया, मगर इनको कुछ नहीं मालूम कारपोरेटर का काम क्या होता। उसके बाद में जैसे ही इनको एमएलए का टिकट मिला, लोग कहने लगे साबिर भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको कांधे में बिठाकर लेके जाएंगे। मगर मैं साबिर भाई की तारीफ करूंगा। साबिर भाई काबली वाना ने कहा अगर फर्ज करो मैं ठहर जाऊंगा, खुदा ना खास्ता मेरा कोई भाई हार जाएगा तो आवाम कहेगी साबिर भाई आप क्यों ठहरे हैं, नहीं ठहरना था। साबिर भाई ने दिल बड़ा करके पिछले टाइम पे नहीं लड़ा, मगर हमको उम्मीद थी कि ये कुछ काम करेगा, मगर ये काम आपका हरगिज नहीं करा। जो परेशानी आती है बेशक हम जानते हैं ऊपर वाले की तरफ से आती है। एक 2020 के अंदर एक ऐसी मुजीर बीमारी, एक ऐसी बीमारी आई जो कोरोना वायरस की तौर के ऊपर, कोविड-19 की तौर के ऊपर न जाने हमारे कितने बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, मगर हमको बिल्कुल इसीलिए ये जो आपका एमएलए है ये हरगिज पलट के नहीं देखा। आपके घर में जब चूल्हा नहीं जल रहा था ये कहा था, ये बहाना करके अपने आप को बीमार बता के रह गया। बाबा बीमार तुम कितने बार हुए? हाँ, हमने शहर हैदराबाद के अंदर रात दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहा। मैं एक वाकया बयान करता हूँ। जैसे कोरोना वायरस आया दिल्ली के अंदर मरकज के लोगों को यह कहा गया कि भाई ये लोग की तरफ से कोरोना आया। शहर हैदराबाद में काफी हमारे तबलीगी भाइयों को लेकर जाके सरकारी अस्पताल में जब भर्ती करवा दिया गया, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को एक फोन आता है कि ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, मगर आंख के जोड़े आंख के कपड़े के साथ है, इन लोग को अगर कोई चीज भी नहीं है। असद साहब ने मुझे फोन करा करके कहा मेरा साहब आप जाइए उनका कुछ इंतजाम करिए। तो ये आपका भाई, ये खादिम जो शहर हैदराबाद का एमएलए है, कभी अपनी जान की परवाह नहीं किया। मैंने सोचा 200 चिल्लर हमारे भाई हैं, उनको लग जाके लुंगी और कुर्ता लग जाके मैंने अपनी परवाह किए बगैर, अपनी बीवी और बच्चों की परवाह किए बगैर अस्पताल जाके उनको पहुंचाता हूं। अगर आपको भरोसा नहीं आता, सोशल मीडिया का दौर है, आप जाके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये खिदमत होती है, मगर आपके यहाँ ये कांग्रेस पार्टी हमेशा आपको धोखा देते रही है। तो ऐसी पार्टी को अब आपके हाथ में है कि आपको इसको क्या करना है। मुझे मालूम है, हमारे बुजुर्गों को भी मालूम है कि ये लोग को क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, चूंकि मेरे भाई इम्तियाज जलील को भी सुनना है, ये डायरेक्ट 1 to 1 उनको भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, अच्छा काम कर सकेंगे। आपको मालूम है हमारी नजर में ना राहुल, ना मोदी, ना शाह, सारे की है। फर्क इतना है, लोग जानते, बुजुर्ग लोग, पहले एक पोस्ट कार्ड आता था, एक इंग्लैंड लेटर आता था। कोई पोस्ट कार्ड है, कोई इंग्लैंड लेटर है। एक टाइम का तो ऐसा वाकया था
कि ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी जाके मोदी जी से गले मिल रहे, तो मैंने कहा ना इनको गले का तजुर्बा है ना उनको तजुर्बा है, आखिर क्या करेंगे गले मिलके, ना इनो ना उनो, दोनों के दोनों, समझ लेना आप, बिल्कुल होशियार है, मेरी आवाम जानती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ये है, वक्त और हालात को समझिए। अगर आज आप अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास सबको लेके चलना चाहती है, अगर ऐसे टाइम पे खुदा न खास्ता आप अब की बार गलती करेंगे तो आने वाले 100 साल तक आपकी आवाज देने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हालात तो ये हो गए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, अच्छे स्कूल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे तकरीबन गटर पूरे वैसी है, साफ सफाई नहीं है, कचरे की ढेर पड़ी रहती है, पानी के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन आता है, पी के बच्चे बीमार हो जाते हैं। शहर हैदराबाद के अंदर मैं भी एक कारपोरेटर था, मुझे मालूम है, हमने बल्दिया से शहर हैदराबाद के अंदर आरओ प्लांट हर जगह लगा दिए हैं। आरओ प्लांट से 1 रुपये में 20 लीटर पानी हमारे लोगों को दिया जाता है, जो बिस्लरी से भी साफ पानी है। ये तमाम खिदमत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। मेरे गरीब बहनों की बच्चियों की शादी अगर होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से एक स्कीम पास कराया है, उस स्कीम का नाम है शादी मुबारक। शादी मुबारक स्कीम के अंदर हर बच्ची की शादी में 1,116 रुपये आपके एमएलए के हाथ से चक दिया जाता है। ये स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि अगर आपकी नुमाइंदगी रहेगी तो ही आपके काम होंगे। यहाँ पर आप जिसको भी भिजाए हैं ये सरकारी मुसलमान बन गए हैं, इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने हमेशा यही सोचे हैं कि आपका वोट ले लो और खामोश बैठ जाओ। साबिर भाई बिल्कुल बयान नहीं करे हैं। कांग्रेस का कल्चर तो ये होता है, जब भी आपकी बात करने का रहता है तो ऊपर से हुक्म आता है, साबिर साहब आप कुछ मत बोलिए, अगर आप बोलने का है तो आप हाल को मत आइए। अरे ये कांग्रेस का कल्चर है। हमारे यहाँ कुछ हो जाए हम हरगिज खामोश नहीं बैठते हैं। आपने देखा ऐवान पार्लियामेंट के अंदर एनआरसी का जब बिल आया था, कोई और नहीं था, असदुद्दीन अवैसी ने बिल फाड़ के मुझे मारने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आज फिरका परस्ती इतनी आम हो गई है, फिरका परस्ती इतनी आम हो गई है कि आपकी शरीयत में मदाखिलत की जाती है, आपकी शरीयत में मदाखिलत की जाती है। हम जानते हैं बहैसियत मुसलमान हमको पूरा मालूम है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वक्त आया हम अपनी बीवी बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, वक्त आया अपनी जायदाद को छोड़ सकते हैं, मगर हम शरीयत में मदाखिलत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अकीदा और ईमान है। हमको इसके लिए लड़ने की जरूरत है। आज लोग समझ रहे हैं कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये जीत भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। बाबा ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में गुजरात और दिल्ली का तख्त भी हमारा इंतजार करेगा, क्योंकि हम ये जो कौम है अगर किसको तख्त पे बिठा सकती है तो वक्त आया तो तख्ते पे लिटा भी सकती है। ये हमारे में सलाहियत है, ये हमारा मेन वो है। तो इसके लिए मैं आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर जाने से पहले आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं, क्योंकि 21 तारीख को आपके और हमारे इम्तिहान का दिन है, आपके और हमारे वजूद का दिन है। इसको आप वोट हरगिज मत समझिए, इसको आप यही समझिए कि आज अगर आपका एक एक कीमती वोट पतंग पे बटन पे पड़ेगा या पतंग पे मोहर पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहिए। ये जो चीज यहाँ से शुरू हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहेगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर
मुस्लिम दलित बैकवर्ड क्लास की आवाज असदुद्दीन अवैसी साहब बनकर ये बताएंगे बाबा ये कल था, आने वाले आज का आप इंतजार करो। बलदिया में काम क्या होता, इन लोग कारपोरेटरों की ट्रेनिंग शहर हैदराबाद में दी जाती है। क्योंकि हम मम्मी डैडी के बच्चे नहीं है, हमको मालूम है काम कैसा लिया जाता है, काम किस तरीके से लिया जाता है। घर में अगर एक बेटा थोड़ा तेज होता, चार बेटे जरा ऐसी होते। एक बेटा अगर जिद करता तो माँ और बाप दोनों कहते हैं जाने दे वो बेटा जिद्दी है, बेटा छोड़ देना, उसके हक में बोलते हैं। उसी तरह हम भी जिद करके आपके तमाम हक दिलाएंगे। हम ये कहते हैं आज के बाद इंशाअल्लाह 23 तारीख को गुजरात की सरजमीन पर हमारा हरा परचम लहराएगा। उसको इंशाअल्लाह कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि हर पार्टी का झंडे का कलर कोई और होता, आपकी हमारी पार्टी का झंडे का कलर हरा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हरे कलर की आप लोग लाज रखेंगे। मैं बड़ी उम्मीद से हैदराबाद से आपके दरमियान में आया हूँ और असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेके आया हूँ। कुछ नौजवान मुझे आज ये कह रहे थे भाई असद साहब तो आके गए हैं, अकबर साहब को भी एक बार लाना था। तो मैंने कहा यूं में फतेह जब मनाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों भाइयों को रखेंगे, उसके बाद पूरा जलजला आ जाएगा। और लोग समझ रहे सागर भाई क्यों खामोश है। समंदर जब खामोश रहता है तो सुनामी आने का इंतजार करो। 21 तारीख को पतंग के ऊपर आपको वोट देना है। मैंने बार बार पतंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये इलेक्शन में पतंग नहीं दिखेगी मगर बहुत बुलंदी पे उड़ेगी। आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये जितने हैं सीधा सीधा लेना है और दबा के खींच मारना है। उसके बाद को तोहफे के तौर के ऊपर गुजरात से 21 तारीख को हमारी पोलिंग 21 उम्मीदवार 21,786 होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का टोटल भी 21 होता। ये 21 को आप इंशाअल्लाह ताला पूरों को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।